వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పట్నం ఆల్ ఇన్ వన్కి స్వాగతం అండి. లాస్ట్ వీడియోలో 10th క్లాస్ లెసన్ ప్లాన్ పెట్టినప్పుడు చాలామంది మిత్రులు స్పందించారు, తమ అభిప్రాయాన్ని కూడా తెలిపారు. సంతోషము. మళ్ళీ అడిగారనమాట, మేడం మీరు వేరే ఏమైనా చేసి ఉంటే అవి కూడా పెట్టండి అని. సో ఈసారి కొంచెం క్లియర్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఏ క్లాస్ అయినా కానీ మనము స్టార్టింగ్లో వార్షిక యోజన రాసుకుంటాం కదా, అంటే ఇయర్ ప్లాను. సో అది వార్షిక యోజన అని పెట్టాను. ఇక్కడ अध्यापक या अध्यापिका का नाम, తర్వాత పాఠశాల का नाम, కక్ష, సాత్వి, విషయ్ హిందీ, ఇవి అటు ఇటు కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, అది మన ఇష్టము. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే కాలమ్స్ క్రమ సంఖ్య, మహీనా, పాఠ का नाम, విశేష గతివిధియా, ఆవశ్యక సంసాధన్, టిప్పణియా. సో ఇక్కడ క్రమ సంఖ్య 1 2 3 ఇట్లా రాసుకుంటూ వచ్చేస్తాం కదా. ఆ తర్వాత మహీనా అంటే జూలై, ఆగస్టు, సితంబర్, అక్టోబర్ ఇలా రాసుకుంటూ వచ్చేస్తాం. పాఠ का नाम అంటే ఆ జూలై నెలలో మనం ఏ పాఠాన్ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉందో మనకు ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళు ఒక టైం టేబుల్ ఇచ్చారు కదా. సో ఇయర్ టైం టేబుల్ దాంట్లో ఏవి ఇచ్చారో అవి మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ. అలాగే విశేష గతివిధియ అంటే ఇందులో మనము భాషాకి బాతకి సంబంధించి లేదా వేరే ఏ అంశాల గురించైనా మనము చెప్తున్నప్పుడు వాటి గురించి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఆవశ్యక సంసాధన అంటే మనము చిత్ర చార్టు ఇలా మన ఇష్టం, అంటే మనం ఏం చూపిస్తున్నాం పిల్లవాడికి అనే దాన్ని బట్టి ఓకే, వీడియో చూపిస్తే వీడియో అలా రాసుకోవచ్చు. ఆగస్టులో హోషియార్ కవ్వ, ఆదివాసీ నృత్య ధింస, ఇవి 2 కంప్లీట్ చేయాలి. సో మనము ప్రతి లెసన్లో కూడా మనం పూర్తి చేసినప్పుడు ఒక లఘు పరీక్ష ఒకటి పెట్టుకోవాలి. అలాగే నిబంధన ఉంటుంది కదా, దాన్ని చిన్న చిన్నగా పరిచయం చేసుకుంటూ రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ ఒక నిబంధన పరిచయం చేయండి, ఒక్కొక్క క్లాస్లో ఒక్కొక్క నిబంధన పరిచయం చేసుకుంటూ రండి అని అన్నారు. క్లాస్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ లెసన్స్లలో ఓకే. సో ఇక్కడ మేరా గావ్ అనేది ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత రచనాత్మక్ ఆకలన్ ఏక్ అంటే FF1 అనమాట. ఇది ఏ తేదీలలో అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళు డేట్స్ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి సో వాటిని ఇక్కడ నేను చూపించడం జరిగింది. 7, 8, 9 సితంబర్ అని. పాఠ్యక్రమ ఆగస్టు తక్ అని ఇచ్చాను ఓకే. తర్వాత సితంబరు అమ్ నన్హే బచ్చే ఈమాందారీ కా ఫల్. ఈ సితంబర్లో మాత్రము మనకు హిందీ దివస్ ఉంది కదా, सितंबर 14 అంటే 14 तारीख सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना. तो इसीलिए यहाँ पे हर एक क्लास में यानी कि चाहे वो 6वीं कक्षा हो, चाहे वो 7वीं कक्षा हो, चाहे वो 8वीं 9वीं 10वीं कुछ भी हो, सो वहाँ पे हमें इस महीने में सितंबर 14 के बारे में बताना आवश्यक है. और इसीलिए यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है 14 सितंबर हिंदी दिवस. और यहाँ पे कौन सा निबंध हम परिचय करवा सकते हैं उसके बारे में लिख लीजिए. यहाँ पे तो मैंने हमारी पाठशाला लिखा है ओके. लघु परीक्षा 2 और यहाँ पे आवश्यक संसाधन जो है चित्र चार्ट वीडियो ओके. रचनात्मक आकलन 2 13 14 15 अक्टूबर. पाठ्यक्रम है सितंबर तक ओके. नेक्स्ट 4th वन अक्टूबर में पत्र लेखन पढ़ाया जाएगा और छुट्टी पत्र यहाँ पे संज्ञा चित्र चार्ट वीडियो हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल है उसे यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद नवंबर कोयल आओ हिंदी सीखो. उसके बाद इस कक्षा में यानी कि इस सत्र में हम निबंध राजभाषा हिंदी को सिखाया जा सकता है. यदि आप अलग सिखाना चाहते हैं तो उसे भी मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है तो राजभाषा हिंदी को ही सिखाया जाए, ऐसा नहीं है. तो आप अपनी मर्जी के अनुसार जो इम्पोर्टेंट निबंध है बच्चों को जो आवश्यक है सो उन निबंधों को यहाँ पे हम प्रस्तुत कर सकते हैं ओके, यहाँ पर बता सकते हैं. उसके बाद सर्वनाम लघु परीक्षा 3 हो गया. तो बाद में आ जाता है सारांशात्मक आकलन है ना. यहाँ पे देखिए सारांशात्मक आकलन यानी SA1 21 से 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ओके. ये पाठ्यक्रम है. 15 नवंबर तक जो पाठ्यक्रम है उसी को लिया जा सकता है यहाँ पे. तो उसके बाद दिसंबर में
हम साहसी बालक कबीर की वाणी पूरा करते हैं और इसमें जो विशेष गतिविधियां के अंतर्गत विशेषण, मित्र को पत्र, लघु परीक्षा चौथा। ओके, चित्र चार्ट वीडियो ये हर बार बताती हूँ मैं। यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल है, जो वीडियोस है या कोई डिजिटल सारे जो उपकरण हैं उन सभी का यहाँ पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद आ जाएगा रचनात्मक आकलन तीसरा। ओके, 19, 20, 21 जनवरी को ये आयोजन किया जाएगा। पाठ्यक्रम है दिसंबर तक, जनवरी में सफलता का मंत्र पूरा करते हैं। इसमें क्रिया शब्द, चित्र चार्ट वीडियो। ओके, बाद में आ जाएगा रचनात्मक आकलन चौथा। ओके, ये तो 6 और 7, 8 फरवरी पाठ्यक्रम जनवरी तक का जो पाठ्यक्रम है उसे लिया जा सकता है। और फरवरी में कोंडपल्ली की यात्रा, पर्याय शब्द, विलोम शब्द, लघु परीक्षा 5वां। ओके, ये सभी यहाँ पे हमें मेंशन करना चाहिए। और यहाँ पे जो चित्र चार्ट वीडियो एज यूजुअल। उसके बाद मार्च में पुनरावृत्ति यानी कि जो रिवीजन हो जाएगा। सो आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, वेट यस, अब राइट। ओके, सो मार्च में तो पुनरावृत्ति अभ्यास यानी कि रिवीजन कराया जाएगा। सो लिंग, वचन, लघु परीक्षा 6वां। ओके, ये तो चित्र चार्ट वीडियो एज यूजुअल। और उसके बाद अप्रैल में पुनरावृत्ति अभ्यास, फिर एक बार रिवीजन किया जाएगा और लघु परीक्षा यहाँ पे 7वां। और लास्ट में सारांशात्मक आकलन 2 यानी कि essay 2। उसके डेट्स दिए हैं यहाँ पे 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। ओके, पूरा पाठ्यक्रम है। सो ये है मित्रों वार्षिक योजना। और अब चलेंगे हम पाठ योजना की तरफ। ओके, सो पाठ योजना ये है कि ये है पाठ योजना। आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, बढ़िया राइट। ओ यस ओके। सो यहाँ पे तो पाठ योजना लिखा है मैंने। एज यूजुअल यहाँ पे जो हम अपना अध्यापक का नाम और पाठशाला का नाम, यहाँ पे तो मैंने कक्षा विषय ऐसा दिया है, आप अपनी मर्जी के अनुसार लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे पाठ का नाम है जो ज्ञान हमको दीजिए, जो पहला लेसन है 7वीं कक्षा में। ओके, तो विषय के अंतर्गत यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो लेसन है उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे सुनिए बोलिए है ना, ये सुनिए बोलिए और पढ़िए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है लिखिए हैं। उसके बाद यहाँ पे वार्षांश और उसके बाद यहाँ पे सृजनात्मकता और यहाँ पे व्याकरणांश है ना। ये सभी सोपान है। हर लेसन में, हर लेसन के पीछे ये सब कुछ दिया जाएगा है ना। ఇవన్నీ ఇస్తారు కదా ప్రతి లెసన్లో మనకు ఈ వెనకాల ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అవునా. सोचिए बोलिए विषय वस्तु ఇక్కడ నుంచి చూడండి. సునియే బోలియే పढ़िए लिखिए భాషాంశ సృజనాత్మకత వ్యాకరణాంశ ఇవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేటువంటి సోపానాలే. ఇవి వేరే ఎక్కడి నుంచో తెచ్చిపెట్టినవి కాదు. ఓకే, సో ఇవి విశేష జానకారీ అంటే మనము ఏవి కొత్తగా పిల్లవాడికి ఈ పాఠం ద్వారా నేర్పిస్తున్నాము అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాము. మనం పాఠంలో ఎన్ని అంశాలను నేర్పిస్తామో అన్ని అంశాలన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకు ఉండేటువంటి కాలం చాలా చిన్నది. సో దట్ ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 అన్న మనము మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. प्रार्थना से संबंधित गीत गवाएंगे. राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. ओके, उसके बाद आनंददाता, दुर्गुण, सदाचारी आदि नए शब्दों की जानकारी दिया जाएगा. ओके, सो ये है. और यहाँ पे जो कालांश है सो उसे मैंने यहाँ पे दिया है. ओके, उसके बाद आ जाएगा आपको ये वाला यस पूर्व अवधारण कौशल यानी पूर्व ज्ञान की जांच करना, संयुक्ताक्षर के बारे में ज्ञान प्रदान करना, भगवान की महिमा के बारे में बताना,
छात्रों में नैतिक गुणों का विकास करना। इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने लिखा है। रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन और साहित्यिक परिचय देना, बस ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं। और उसके बाद सीखने की संप्राप्तियाँ, यानी कि ये बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं इस पाठ से, उन सभी अंशों को यहाँ पर हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे कविता पाठ को ध्यान से सुनकर अपनी भाषा में बताते हैं और अपने स्तर और पसंद के अनुसार कविता को आनंद के साथ पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में आ जाएगा। उसके बाद अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में अपनी कल्पना से कविता को आगे बढ़ाते हैं और परिचित शब्दों के वर्णों का उपयोग करके नए शब्द बना सकते हैं। भाषा की बात, नए शब्द के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, उनका अर्थ शब्दकोश में ढूंढते हैं। और यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ दोस्तों आप सबसे। शब्दकोश जो है सभी को आदत करवा दीजिए। शब्दकोश को लेना और उसमें शब्दार्थ को ढूंढना बच्चों को सिखा दीजिए। यदि हम ना होते तो भी बच्चे नए शब्दों का अर्थ लिख सकते हैं, है ना, इसमें ढूंढ के। हर वक्त हमारे ऊपर डिपेंडेंट होना भी अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद समानार्थी विलोमार्थी शब्दों का चयन करेंगे। भाषाई के द्वारा शब्द भंडार का विकास करते हैं। ये भाषा का खेल कैसे खेलते हैं ये मैं आपको दिखा दूंगी। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस को रख दिया है वर्णमाला के, बाकी भी रख दूंगी, ओके। और उसके बाद विषय प्रवेश है। पाठ को बताने से पहले जो विवरण हम देते हैं उसका जिक्र मैंने यहाँ पे किया है। हम भारत में रहते हैं, यहाँ विभिन्न जाति धर्म भाषाओं के लोग रहते हैं। हर जाति धर्म के व्यक्ति अपनी रीति रिवाजों के अनुसार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में भगवान से कई चीज़ें मांगते हैं, जैसे शांति, स्वास्थ्य, पैसा, उन्नति, ज्ञान आदि। यह पाठ बच्चों के प्रार्थना से संबंधित है। ऐसा जरूरी नहीं है जो कुछ मैंने लिखा है उसी को यहाँ पर लिखा जाए, ओके, ऐसा नहीं है। उसके बाद अनुभव एवं चिंतन, तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं बताने के बाद बच्चों से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। हम किसी से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से क्या क्या मांगते हैं, ये सारे प्रश्न, ओके। उसके बाद अब आएंगे जो यस, थोड़ा कैमरा को एडजस्ट करने दीजिए, राइट, दिखाई दे रहा आपको शायद, ओके ओके। राइट, अब अध्यापक कार्य, छात्र सामूहिक कार्य, छात्र वैयक्तिक कार्य, आवश्यक संसाधन, ओके। पहली कक्षा में सोचिए बोलिए है ना, यहाँ पे है देखिए, सोचिए बोलिए। इस चित्र को दिखाते हुए हम बच्चों से पूछेंगे कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं आपको। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार कुछ शब्दों को बता देंगे और कुछ को नहीं बता देंगे। तेलुगु में बता दिया तो भी ओके, ओके चलेगा। ये सोचिए बोलिए यहाँ पे मैंने दिया है। छात्रों को चित्र दिखाएंगे, चित्र संबंधी शब्दों के बारे में बातचीत करेंगे, चित्र संबंधी प्रश्नों को शामपट पर लिखेंगे। ये हम लोग करेंगे काम। और छात्र सामूहिक रूप से क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, छात्र चित्र देखेंगे, चित्र संबंधी शब्दों को मातृभाषा या हिंदी में बताएंगे, उन शब्दों को शामपट पर लिखेंगे, ओके। छात्र वैयक्तिक कार्य क्या करते हैं यहाँ पे देखिए। छात्र वैयक्तिक कार्य, छात्र उन शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेगा। यानी कि यहाँ पे चित्र जो है ना, यहीं पर हम लोग ऐसे, यहाँ पे 2 पेड़ है ऐसे लिखवा सकते हैं हम लोग, ओके। ये पत्ते हैं ऐसे,
बच्चे हैं, पेंसिल से लिखवा दीजिए, पेन से मत लिखवाइए। ओके, क्योंकि नए साल में नए बच्चे आ जाते हैं। यदि टेक्स्ट बुक्स आने में कोई देरी हो गए तो हम ये पुरानी किताबें दे सकते हैं बच्चों को, उनसे यहाँ पे लिखवा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यदि पेंसिल है तो हम रब करवा सकते हैं, पेन है तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए कहिए बच्चों से। ओके, ये हो गया। सो ऐसा पूरे शब्दों को लिखवाना है और अपनी पाठ्यपुस्तक में उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर लिखावट में लिखेगा। आप ఆ పదాలను తన నోట్బుక్లో అభ్యాస పుస్తకం అని ప్రాక్టీస్ బుక్ నోట్బుక్ ఉంటుంది కదా, అందులో మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్తో రాయించాలి. రాస్తాడు అని చెప్తున్నాం మనం. అది రాస్తాడా వాడు లేదా, మంచి హ్యాండ్ రైటింగా కాదా, ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్ మార్కే. ఎంత మనము పిల్లవాడికి చెప్పాలని ట్రై చేసినా కొన్నిసార్లు కొన్ని చోట్ల ఫెయిల్ అవుతూనే ఉంటాం. బట్ నిరాశ చెందొద్దండి, కామయాబ్ హోంగే హమ్ ఏక్ దిన్. ओके, जस्ट किडिंग. ओके, आवश्यक संसाधन पाठ्यपुस्तक खड़िया जाड़न. ఓకే, ఇవి అన్నింటిలో కంపల్సరీ ఉంటాయి. ఇవి ప్రతి మనము క్లాస్కి వెళ్ళామంటే ఇవి కామన్. ఓకే కదా, అది. సో उसके बाद यहाँ पे विषय वस्तु. इस पार्ट में हम किस विषय के बारे में बताने जा रहे हैं उसे लिखेंगे, बताएंगे, चर्चा करेंगे. ओके, यहाँ पे छात्र सामूहिक कार्य में क्या करेंगे, देखिए. छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन, कवि का जीवन परिचय ध्यान से सुनेंगे, शब्दों के अर्थ शब्दकोश से निकालेंगे. हाँ, ये बात तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. हम लोग टीचिंग नोट्स लेकर क्लास में चले जाते हैं, उसी नोटबुक को देखकर हम शब्दार्थ को शामपट पर लिख देते हैं. ऐसा हमेशा मत कीजिए. थोड़ा बहुत उन लोगों को भी कोशिश करने दीजिए, बच्चों को ढूंढने दीजिए. 1-2-5 मिनट चला जाएगा या 10 मिनट चला जाएगा, कोई बात नहीं है क्लास में. हाँ, लेकिन आदत तो हो जाएगी शब्दकोश में शब्दों को ढूंढना, अर्थ को पहचानना, ये सभी आदत हो जाएगी उन लोगों को. ओके, शब्दकोश से निकालेंगे और छात्र बातचीत, सहायक सामग्री का प्रयोग और सामूहिक चर्चा के माध्यम से पाठ को समझने का प्रयास करेंगे. और छात्र यहाँ वैयक्तिक रूप में यानी कि इंडिविजुअल क्या करेंगे, छात्र कठिन शब्दों का अर्थ पाठ्यपुस्तक और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेगा. यहाँ पे कविता से संबंधी मुख्य विषयों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेगा. और यहाँ पे आवश्यक संसाधन क्या है, सत्य के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र का प्रस्ताव देना, हमें देना पड़ता है. ओके, महात्मा गांधी जी के जीवन की झलकियाँ छात्रों के सामने प्रस्तुत करना है. इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, महात्मा गांधी जी का चित्र चिपका दिया. ओके, सो उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुनिए, बोलिए. प्रत्येक प्रश्न को शामपट पर लिखना और छात्रों से पढ़ाना. छात्रों से सामूहिक रूप से चर्चा, मुख्य बिंदुओं को शामपट पर लिखना आदि कार्य हम करेंगे. ओके, छात्र प्रश्न पढ़ेंगे, सामूहिक चर्चा में भाग लेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे, अंत में निष्कर्ष पर पहुंचेंगे. ये सारे छात्र सामूहिक कार्य में आ जाएंगे. और छात्र वैयक्तिक रूप से क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, छात्र मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेगा. ओके, सो उसके बाद यहाँ पे आवश्यक संसाधन जो है पाठ्यपुस्तक, शामपट, खड़िया, जाड़न, सो ये सभी कुछ हर एक क्लास में आ जाएगा. ओके, तो उसके बाद पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए है ना, इस पढ़िए के अंतर्गत जो जो अंश आए हैं उन सभी का यहाँ पे हम पाठ्यपुस्तक में लिखवा देंगे. यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे है ना. सो और उसके बाद लिखिए. ओके, लिखिए है ना यहाँ पे, और लिखिए में जो जो अंश आते हैं उन सभी का भी यहाँ पर हम लिखवा सकते हैं टेक्स्ट बुक में. और उसके बाद अभ्यास पुस्तिका में भी लिखवाना है. ओके, सो देखिए, छोटे छोटे प्रश्न, सारांशात्मक प्रश्नों, रिक्त स्थानों, संकेतों के आधार पर शब्दों, ये सभी कुछ ये सोपान है लिखिए में, इन सभी का हम चर्चा करेंगे. जवाबों को अपनी पाठ्यपुस्तक और अभ्यास पुस्तिका में सुंदर लिखावट में लिखने का प्रयास करेगा.
और पाठ्य पुस्तक, शामपट्ट, कड़िया, झाड़न, ये सभी आवश्यक चीज़ें हैं। ओके, सो ये हो गया। लिखिए, उसके बाद आ जाएंगे भाषांश, है ना। सो इसी भाषांश को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और भाषांश में वर्ग पहेली है, वर्ग पहेली। ओके, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सभी कुछ है ना। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है और यहाँ पे तो विलोम शब्द है ना। सो यही लिख दिया है मैंने यहाँ पे। और छात्र प्रश्न पढ़ेंगे, सामूहिक चर्चा में भाग लेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में सही जवाबों को लिखेंगे। ओके, सो उसके बाद छात्र वैयक्तिक रूप से क्या करेगा? छात्र भाषांश संबंधी प्रश्नों के जवाबों को अपनी पाठ्य पुस्तक में और अभ्यास पुस्तिका में लिख लेगा। पाठ्य पुस्तक, शामपट्ट, कड़िया, झाड़न। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट सोपान है, उसके बाद जो नेक्स्ट सोपान है सृजनात्मकता, है ना। इसी सृजनात्मकता को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चित्र देखकर शब्द लिखना, यानी कि यहाँ पे चित्र है ना, इस चित्र को देखते हुए शब्दों को बताना है। और परियोजना कार्य यहाँ पे दिया है, परियोजना कार्य उसी को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और उसके बाद अनुवाद कार्य है, और यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है अनुवाद कार्य करना, शामपट्ट पर वाक्य लिखना, सामूहिक चर्चा करना, इन सभी का यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद छात्र प्रश्न पढ़ेंगे, सामूहिक चर्चा में भाग लेंगे, जवाब प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। सही, ये सारे हर एक इसमें आ जाएंगे। जहाँ जहाँ बच्चे कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इन सभी विषयों को लिखना पड़ेगा। ओके, जवाबों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर लिखावट से लिख लेगा। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट व्याकरणांश है संयुक्ताक्षर का ज्ञान प्रदान करना और व्यंजन और दूसरे व्यंजन के आपसी मेल को आसान तरीके से समझना। सो छात्र ध्यान से सुनेंगे, अपने संदेहों को प्रकट करेंगे, वर्ण का पूर्ण रूप शामपट्ट पर लिखना। छात्र पूरी पाठ्य पुस्तक से संयुक्ताक्षर को ढूंढकर एक सूची बनाएगा और उन शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास करेगा। ये वैयक्तिक रूप का कार्य है। उसके बाद यहाँ पे संयुक्ताक्षर से युक्त चार्ट, पाठ्यपुस्तक, शामपट्ट और खड़िया, झाड़न और इस लेसन से संबंधित एक छोटा सा चित्र मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। ओके, तो यहाँ पे व्यंजन और दूसरे व्यंजन के आपसी मेल को आसान तरीके से समझना, संयुक्ताक्षर वाले शब्द और द्वित्वाक्षर वाले शब्दों के बीच भेद को स्पष्ट करना, वर्णों के रूप के बारे में समझना, ये सभी हमें करना चाहिए। सो विषय संबंधी प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न यहाँ पे मैंने दिया है कुछ ऐसे प्रश्नों को, तो यहाँ पे भी। उसके बाद लास्ट में आकलन, अच्छे छात्र में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसे लिख दीजिए। और बच्चे अपनी मातृभाषा में भी बोल सकते हैं, उसके बाद हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो ऐसे ही बच्चे सीख जाएंगे ना। ओके, सो दोस्तों, यह है 7वीं कक्षा की पाठ्य योजना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे देना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर एक बार एक नए विषय के साथ आपके सामने आएगी आपकी पट्टम ऑल इन वन।